Very good afternoon. Today we are going to discuss three stages of law of variable proportions. The question which we have started yesterday, few things are left which we will be discussing today. That's why I have drawn this diagram again. So you can see this figure. Board is visible to you? Yes, let us start with the work. Law of variable proportion is a short question which is to come in the paper, and it is 100% to come in the exam. So we are going to discuss this question in detail. As I have told you, that first point is that explain the total product, marginal product behavior when there is a change in the number of workers. What happens? We are going to discuss three stages. What about the first stage? You will say from the table and diagram, it is clear that after the third stage, point of inflection comes. This P point is point of inflection. What does inflection means? It means that there is a change in the returns after this P point. There is change in the returns. Firstly, it was increasing returns, and after P point, output is increasing of course, but at the diminishing rate. जब कोई चेंज हो जाती है किसी चीज में तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से बदल जाए. ठीक है, तो ये पी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. जैसे कि हमने किया था कि 1 to 3 production is increasing, marginal product is also increasing. When total product is increasing at a diminishing rate, marginal product falls down. It is increasing total product, but marginal product is decreasing, which shows that increase is at the diminishing rate. After this point Q, you can say, after this point Q, total product is falling and marginal product is becoming negative. So there are three stages. First stage, it is popularly known as stage of increasing returns. This stage comes due to economies of large scale. ये लार्ज स्केल की इकोनॉमीज हमें मिलनी शुरू हो जाती है. वाई? क्योंकि पहले फिक्स फैक्टर जो है ऑप्टिमली यूज नहीं है, ऑप्टिमम यूज नहीं किया हमने उसको. कुछ रिसोर्सेस हमारा जो है पड़ा रहता है, जैसे कि हमारी जो है कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 1 करोड़ गुड्स की है, बट हम 50,000 का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो हम उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मशीन का यूटिलाइजेशन फुल करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? जब हम कोई काम, एक ही काम बार बार करते हैं तो उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हमें जरूरत नहीं पड़ती मेजरमेंट या किसी भी चीज की. तो जैसे ही लार्ज स्केल होता है, ज्यादा वर्कर्स आते हैं, तो वर्क इज डिवाइडेड. One person do the work according to his ability and capability.
तो वो उसी काम को करते करते क्या हो जाता है, उसको ज्यादा जो है एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है, उसको एक्सपर्टाइज मिल जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज कर हो जाती है. बट दिस इज नॉट एन आइडियल stage for the producer. Why? Because there is still capacity to increase producer. Because he knows that there is still capacity to increase प्रोडक्शन. उसे पता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ही विल नॉट स्टॉप हियर बिकॉज ही नोज इट वेरी वेल दैट हिज benefits are going to increase and he will be able to produce more. This is the first stage. Second stage, here firm is getting maximum profit, maximum production, total production starts increasing at the diminishing rate. मेन लाइन क्या है यहाँ पे, इसमें हमने क्या लिखना है, ये तो हमने कर लिया कि दिस इज इंक्रीजिंग रेट, दिस इज डिमिनिशिंग रेट. मेन सेंटेंस है व्हेन, मेन कंडीशन, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, marginal product is 0. This is known as ideal situation. Why? Because every firm wants to operate maximum production at the level where it is getting maximum production. TP is touching its peak maximum at this point as well, at this point as well. So he will do production up to Q, and here he is getting the maximum production and marginal product is 0. This is the main line which is to be written in the exam and it is urgently required. And another thing, ideal situation, ideal stage कहा जाता है इस stage को. Every firm, every producer wants to operate under this stage. Am I clear to you, Gurpreet? ठीक है बेटे, understand? Yes, Manjot, Kanchan, bete unmute yourself. Yes, ma'am, everything's clear. Right, this is the second stage. In third stage, we need to write only this thing, that this is known as stage of negative returns. ये नेगेटिव रिटर्न्स है. कोई भी फर्म यहाँ काम करना पसंद नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि नुकसान हो रहे हैं. ठीक है? नो फर्म wants to operate under it. ये मेन चीजें हैं जो मैं लिख के दे रही हूं. राइट, आप नोट कर सकते हैं. नो फर्म wants to operate under it. Firm is facing losses due to overcrowding of workers. Overcrowding of workers. This economy is of large scale. What does it mean? पहले तो एक ही बंदा काम करता था एक काम को, अब 3 बंदे हैं काम करने वाले, फिर 2 हुए, अब 3 हो गए काम करने वाले. तो क्या हो गया? रश हो गया. काम करने की बजाय they will talk with each other, they will not work efficiently and they will spoil the
everything, atmosphere of the institution of the firm. They will agitate, they will go to strikes, they will ask for higher, wages. So these will be the diseconomies of the state. No firm wants it. You can say total product cannot be negative or zero, but marginal product can be positive, can be negative, and can be zero, can be negative. These are the three stages which I wanted to cover today. और इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ठीक है ये सारी चीजें, तो मैं इसको रब करने लगी हूँ. Now let us come to the next part. Please don't erase. Okay. I wanted to write only the last stage. Okay. Last stage. Line. Yes. This is known as stage of negative returns. Stage of negative returns. No firm wants to operate under it. Firm is facing losses. So this is all due to the diseconomies. ये figure में rub कर देती हूँ because this we have made yesterday as well. I have made only for your understanding again so that it should be in front of us. Many students forget to write this point that when total product is maximum, marginal product is zero. Have you noted now? Last line. Yes, ma'am. Thank you. Okay, let us start with the next part. Very easy, very simple. Total utility में भी हमने ये lines की हैं, ये sums किए हैं, वही वाला question हम करने जा रहे हैं. वैसे तो इस chapter में से 6 marks का question आता है और मैं आपको एक question डालने लगी हूँ यहाँ पे. It is given labor unit 1, 2, 3, 4. Total product, it is given 10, 18, 24, 28 and 30. Find MP and AP. This is the question, simple one. पेपर में ब्लैंक्स वाला आता है, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन ब्लैंक्स वाले करेंगे. पहले हम ये वाला कर लेते हैं, सिंपल वाला. What do you mean by average product? I told you divide total product by out labor, quantity of labor. क्यों? ये quantity है, क्यों है? Quantity of labor. इससे divide कर दे, 10 को 1 से, 18 को 2 से. Then marginal product TPN में से TPN -1 माइनस कर दे. यही रूल हम लगाते हैं नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करके. These are the 2 formulas and rules. पेपर में ये लिखने जरूरी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलते. जैसे 10/1, 18/2, 24/3, 28/4, 30/5. कर लीजिए कैलकुलेट. फर्स्ट है 10, सेकंड है 18 - 10, 24 - 18. मैंने आपको मेथड भी लिख के दे दिया. 28 - 24, 30 - 28. You will get the answers. First 10, 9, 8, 7 and 6. Just see, average product is falling. This is 10, then 8, 10, 8, 24 - 18, 6, 4, 2. So what are these? Increasing. Total product is increasing at the diminishing rate. This is the stage of diminishing rate. Diminishing returns. Stage of diminishing returns. If in the exam this is asked which stage does it depict, you will say total product is increasing at the diminishing rate. In English you are required to write down the answer, otherwise question is same as we have done in utility.
Now I am going to give you the practice of one question which is in the examination style. Let us see unit. Okay? Unit 1, 2, 3, 4. Then is total physical productivity. Total physical productivity is given 100. लास्ट पे दिए 480. तो ये 2 ब्लैंक्स है, यहाँ वैल्यू नोट गिवन. एपीपी इन रुपीज दिया हुआ है, ये भी. एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी फर्स्ट 2 ब्लैंक्स है, थर्ड पे है 140, फोर्थ इज अगेन ब्लैंक. देन है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज गिवन हियर? 140 at the second place and another 2 are blank. Complete this table. This is the question. Now we are in trouble here. How can we solve it? If and only if we are clear about all the things, only then we will be able to do it. How? Let us start with the first part. आपको मालूम है कि अब एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हमें टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है. ये क्या है? क्वांटिटी. तो टोटल प्रोडक्ट 100 को 1 से डिवाइड किया, 100 जो निकलते हैं पहले वो निकाल लेते हैं. 480 को 4 से डिवाइड किया, 120. ये तो हमारा फर्स्ट हो गया कि हमने यहां से निकाल लिया. अब आपको पता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होती है? नीचे वाली में से ऊपर वाली निकालनी. अब इसमें देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं. टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ nth कॉलम ऑफ n-1. पहला तो 100 ही आना है. आपको ये मालूम है कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मिलती है. अब हम रूल्स लगा रहे हैं, अब हम बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. हाउ वी आर डूइंग? पहले तो हमने डिवाइड कर लिए, 2 पॉइंट आ गए. अब हमने ये वाला निकालना है. हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू लाइक दिस, दैट टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि प्राइस को क्यू से डिवाइड करें तो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आती है. तो लेट अस सी 140 into 3. 140 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 420. ये भी आंसर आ गया. अब हमारे पास सिर्फ ये कॉलम खाली रह गया, ये मल्टीप्लाई करके निकालना है, ये वाला फार्मूला लगा के. 420. मैम आपने ये लास्ट 2 फिलअप्स जो करवाई वो क्लियर नहीं हुई. ओके, लेट अस सी अगेन. एक तो मैंने ये वाली करवाई आपको. ओके, और तो मैंने कोई भी नहीं करवाई अभी. ये तो गिवन ही है, 100 as it is लिखा है, ये नहीं पता लगा है ना. Let us see. I can explain you again. You firstly see, first of all 100 को 1 से डिवाइड किया, 480 को 4 से. ये स्टेप क्लियर है सबको? Am I clear? ये वाला डिवाइड करने वाला सेकंड स्टेप. अब मैडम कह रहे हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो. 140 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 420. अब ये क्लियर हो गया? Up to here it is clear? Yes. थर्ड स्टेप. यहाँ पे नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करनी है. ऊपर कुछ है ही नहीं तो यहाँ तो 100 ही आएगा ना. फिर ये पता चल गया कैसे लिखा 100. नीचे वाली में से 100 में से ऊपर कोई प्रोडक्शन ही आनी तो 0 ही करनी है. -100 -0 100. ये भी क्लियर हो गया टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में. अब इन दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या बनेगा? टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. एक का है 100, दूसरे ने की 140 प्रोडक्शन. दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 240. ये इन दोनों को ऐड करके आया. ये स्टेप नहीं आपको क्लियर हुआ था कि कैसे आया. इन दोनों को अगर समेशन एम्प्टी कर दे, समेशन प्रोडक्टिविटी करते जाए तो टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाती है. एक की प्रोडक्शन है 100, दूसरे की 140, तो 2 का टोटल हो गया 240. राइट इट इज? अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं. अब यही वाला क्वेश्चन सिंपल बन गया क्योंकि हमारे पास एक लाइन पूरी होगी.
From this line we can find all the things. Clear? कैसे? APP निकालना है, 240 को 2 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। ये भी लाइन कंप्लीट हो गई, ये वाली रह गई। अब नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करते जाओ। इसको माइनस किया, 420 को माइनस किया, 240 माइनस किए, तो हाउ मच इट विल बी कमिंग? 180. So we will write here 180. 480 में से 420 माइनस किए, 60. So we will subtract it and write it. 480 minus 420. So that's all about fill in the blanks. तो पेपर में मोस्टली क्वेश्चन कौन सा आता है? फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, तो उसको हमने कंप्लीट करना है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो उसके ऊपर बेस्ड कंप्लीट हो जाए। टिल देन यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट। हाँ जी, हो गया नोट? यस मैम। गुरप्रीत, नोट हो गया बेटे? मैम वो वाला फिलअप्स वाला नोट कर ले, मैं इधर तब तक till then I will be writing the another question of fill-up because this is the main thing which is coming in the exam of 3 marks. Law of variable proportions तो पेपर में आना ही आना है, किसी भी फॉर्म में आए। 6 मार्क्स इसमें से आने हैं, 4 का आए, 3 का आए, 6 का आए, वो क्वेश्चन ही ये पूछता है law of variable proportions every time. Now we are going to write here units. Which are the units? 6 units of labor are given to us. Six units of labor are given to us. Now we are writing fill-ups and other things. Average product in units. This is quantity of labor. Here it is 8, 10, blank, 9, blank, 7. Then is marginal product. Then 2 blanks, 1 10, blank, 4 and blank. Only this much is given and he said complete the table. We know it very well. Without TP, table cannot be completed. तो हमें अपनी तरफ से ये बनाना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट का कॉलम. It is nowhere written make it. To find out all other things, we need to prepare TP as well. So let us start. Formula तो यही है, formula में तो कोई change है नहीं है. So what is to be done? I told you एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो. फर्स्ट ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, जो हमें दिया है उसी से चल रहे हैं. व्हाट इज गिवन? एवरेज प्रोडक्ट. तो क्वांटिटी को एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, टीपी आ जाएगा. कैसे? 8 1s are 8. लेट मी राइट 8. 10 2s are 20. 9 4s are 36. जो मालूम है वो लिख लिए. 6 7s are 42. पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. टोटल प्रोडक्ट के वी हैव रिटन 1 2 3 4. 1 2 3 4 दिए थे, हमने मल्टीप्लाई करते गए और लिखते गए. पेपर में ये फार्मूले नीचे हमने लिखने ही हैं. ओके, नाउ यू सी 8 नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करके क्या आता जाना है? एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है, तो कैसे करेंगे? अब ये देखिए, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस. 8 minus 0 8. ये वाला फार्मूला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, फार्मूला नंबर 2 विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. पेपर में नीचे ये लिखने पड़ेंगे हमें. 20 minus 8 12. ये तो हो गया हमारा 20 minus 8 12. अब ये देखिए, आपको मालूम है कि हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो 20 आया, 20 में 10 ऐड करें तो 30 आया. 3 का टोटल कर दें, 30 आ गया. राइट?
एक और नंबर आ गया जब हमने इन दोनों को ऐड किया, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को। अब ये है 36, 36 में से 30 माइनस करने हैं हमने, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस की, 6 आ गया। अब 36 में 4 ऐड कर दी, नीचे वाली इधर वाली ऐड कर दी, तो 40 आ गया। अब आपके पास ये लाइन कंप्लीट है, ये लाइन आ जाएगी, डिवाइड करते जाओ, आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइडेड बाय 4 दिया हुआ है, ये 8, ये पूरा कॉलम आपका तैयार हो गया। मेनली ये 2 वाले हमने फार्मूलाज लिखे, तीसरे वाला हमने थर्ड नंबर पे ये वाला यूज किया एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए। It depends on you when in the examination hall you are sitting, which method, which formula is coming in your mind. Firstly, you can use that. You can multiply. First of all, we have multiplied APP by 1. तो टोटल प्रोडक्टिविटी हमने फाइंड आउट किया। अभी आप इसको नोट कर लें। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिलअप्स वाला पेपर में पूछा जाता है। Yes. Any questions up to here? No, ma'am. मंजोत, मोहित, कुछ पूछना है बच्चे? No question, ma'am. आज मंजोत ने ज्वाइन किया? Yes, ma'am. I'm present. Okay, okay. Right. So this is the question. अब पेपर में और किस टाइप का क्वेश्चन आता है? वो कहता है फाइंड आउट टीपीएमपी एंड टेल द स्टेज, स्पेसिफाई द स्टेज। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड अनदर क्वेश्चन स्टाइल which is coming in the paper. Labor, L, labor लिख सकता है, quantity लिख सकता है, anything can be written. 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question है, following table gives the average product of labor. Average product of labor is given to you. How? 2, 3, 4, 2, 3, 4. Just see now 4.25. एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए he can write anything. 4. लेकिन मेथड चेंज नहीं होना. This is given 4.3.5. Find the total product and marginal product. It is given that total product at 0 level of employment is 0. Let us see total product of labor and marginal product of labor. You are to find out. Question is in front of you. First formula AP दिया हुआ है, average product. Average का मतलब एक का इतना. I want to give you one example. जैसे मैंने कहा average marks of students of economics in class 12 are 80. It does not mean that everybody got 80. It means that around 80 everybody is getting. तो average का मतलब ये है कि per head इतना है. तो यही ये दिया हुआ है. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ जाएगी. कैसे? एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ लेबर. ये मैंने क्यों लिख दिया APL, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे करना है. 2 1s are 2, 3 2s are 6, 4 3s are 12. इसको करिए मल्टीप्लाई 4 के टेबल पे. ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस इज कमिंग टू बी 4 5s are 20, 4 2s are 8 and 1 10, 4 4s are 16 and 1 17 हो गया. 4 5s are 20. इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 5s are 33, 18 and 3 21. Just see total product is increasing. So we are getting the correct answer. Now MPL. क्या कॉम्प्लिकेशन की है उसने? ओनली डेसिमल्स दिए है, तो कुछ भी नहीं. मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई किया 17 आ गया, इसको किया 21 आ गया. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी TPL माइनस
TPLN-1, ये n है, ये n-1, नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पहला तो 2 ही आएगा, 2 - 0, 6 - 2 4, 12 - 6 6, 17 - 12 5, 20 - 17 3, 21 - 20। मैंने बोला था पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिकॉग्नाइज द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बता सकते हैं क्या है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? यस, कैन यू से फर्स्ट वाला? ये देखिए कहाँ तक डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये 2 है, कहाँ है डिमिनिशिंग? नो बेटे, 2 4 6 ये डिमिनिशिंग है कोई? पहले ऊपर वाला देखिए, 2 4 6 क्या है बताइए? पार्ट्स में डिफाइन करना। बिल्कुल पार्ट्स में ही होएगा आपके सामने, आप डिमिनिशिंग कैसे कर दोगे? पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, कैसे कहोगे डिमिनिशिंग? आप डिमिनिशिंग बोल रहे हैं ना, इसको कहना है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सबसे पहले कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें कौन सी स्टेज आएगी? इंक्रीजिंग रिटर्न्स की। शुरू में तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज शुरू होगी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। आपको दिखाई दे रहा है 5 3 1, तो यहां से देख के यहां तक आप लिखोगे डिमिनिशिंग रिटर्न। उसने कहा है कि आप ये बताइए कि विच रिटर्न्स आर बीइंग ऑपरेटेड हियर इन द फर्म। तो यू कैन नॉट से दैट इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, you will say firstly increasing returns are there, then diminishing returns are there. Now I want to ask you one question, कि nobody, no firm wants to enter in the negative returns, then how the firm will avoid it? देखो बच्चे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आया, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स आता है, तो अब फर्म क्या करे, कैसे करे कि ये ना आए? सोचो जरा, सोचो सोचो, कोशिश करो बताने की। हाँ जी बच्चे, हाँ जी ट्राई। मैम, should it avoid implying more labor? अप्लाइंग मोर, और लेबर लगाना कम कर देगी। लेबर तो बंद कम कर करेगी, बंद कर देगी ना, तो हम कह रहे हैं बंद नहीं करना उसको, उसको इम्प्रूव करना है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या है, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स वाला, गोइंग टू ऑपरेट इन द इकोनॉमी। हाउ टू अवॉइड द थर्ड स्टेज? मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि सपोज कि मैक्सिमम प्रोडक्शन के बाद नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज आ गया, अब फर्म क्या करे? अब फर्म को क्या करना चाहिए, बता सकते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए ना। हमने बोला है कि आफ्टर द मैक्सिमम प्रोडक्शन इज गोइंग टू रिड्यूस। मैंने क्या बोला? 2 3 4 3 2 1 0, 0 हो गई है, उसके बाद -1, तो हम चाहते हैं -1 ना आए। उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, जितने जो हमारे लेबर लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी ज्यादा? कैसे हो सकती है ज्यादा? 2 चीजों से ज्यादा हो सकती है, मैं ही बता देती हूँ आपको। नंबर 1, टू अवॉइड द थर्ड स्टेज इन द फर्म, स्टेज विल डू number 1, stage can apply this method, improvement in technology। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तभी जो है थर्ड स्टेज नहीं आएगी। नई मॉडर्न मेथड्स हम लगाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, नहीं आएगा जो थर्ड स्टेज है उसको हम बाईपास कर पाएंगे। हम नई न्यू मशीनरी, न्यू इनोवेशंस करेंगे, अपने जो लेबर है उनको स्किलफुल बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे कि काम को करना कैसे है। Right? We will give them more practice, then they will be able to do it. Right? Now, second क्या कर सकते हैं?
हमने बोला कि जब हम लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई जा रहे थे, वी इंक्रीज लेबर को इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, जो हमारा फिक्स फैक्टर था, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों का इस्तेमाल मैक्सिमम हो गया, फुली यूटिलाइज कर लिया हमने, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब इससे ज्यादा इंक्रीज करनी है हमने, तो हमें पता है कि फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो है वो बिल्कुल अच्छे से यूज हो गया है। फिक्स फैक्टर अगर हम अकेले लेबर को ही इंक्रीज करेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, टू मेनी कोक्स स्पॉइल द ब्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सर्च आउट द सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर्स। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट some substitutes of fixed factors। हम वो वाला फैक्टर तो यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई और फैक्टर यूज करना चाहिए जो उसको सब्स्टिट्यूट कर पाए, उसकी जगह पे हम उसको इस्तेमाल करें जो उसका काम पूरा कर पाए। ठीक है, तो दो ही चीजें हम कर सकती हैं, एक तो हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करें, दूसरा हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले फिक्स फैक्टर का, क्योंकि फिक्स फैक्टर जो है फिक्स है जो, तो हमें उसकी जगह पे कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जिसके साथ काम करके वर्कर पहले से ज्यादा अच्छे से जो है प्रोडक्शन को कर पाए। क्योंकि अब जो कॉम्बिनेशन था फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का वो पूरा हो गया है, फिक्स फैक्टर को फुलेस्ट लेवल तक हमने यूटिलाइज कर लिया है, राइट। तो इसलिए कोई नया फिक्स फैक्टर होगा तभी लेबर को बढ़ाने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं उसको लेबर को इंक्रीज करने का। सो that is the question's answer which I wanted to discuss with you. Now let us do one another question. Here it is written, from the table write down, find out the phases of the production। phase का मतलब भी स्टेज है, फेज कहते हैं इकोनॉमिक्स में फर्स्ट स्टेज को फर्स्ट फेज, सेकंड स्टेज को सेकंड फेज। सो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर अनदर क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन टाइप। ही सेड दैट डिस्कस एनालाइज इट एज वेल। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल गिव रीजंस टू योर आंसर दैट during which there are increasing returns to a factor, find out the phase। Units of variable factor, he wrote like this। लैंग्वेज कोई भी हो मीनिंग सेम है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हम लेबर ही लेते हैं ना, तो उसने कहा है कि कोई वेरिएबल फैक्टर है उसकी मात्रा को हम इंक्रीज कर रहे हैं, कहां तक, 1 to 5, 1 2 3 4 5। Now we are coming to the next, average product in units, that is also given to us। What is that? 20, 24, 28, 29 and 28। अब एवरेज प्रोडक्ट को देख के हम ये नहीं कह सकते कि विच स्टेज इज कॉन्टिन्यूड। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूं, अभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, जरा एनालाइज करें। वेरिएबल दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट दी हुई है, ठीक है। वी नीड टू टेल दैट एट विच लेवल इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ऑपरेटेबल। तो हमें इसके लिए कैसे बताना पड़ेगा, कहां से देखते हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्ट से। मैं क्या बता रही हूं कल से आपको कि पहले 2 का इंक्रीज हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, 2 3 4, तो किसका बता रही थी, मार्जिनल प्रोडक्ट का। ये क्या दिया है, एवरेज प्रोडक्ट।
एवरेज प्रोडक्ट से डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते मार्जिनल प्रोडक्ट, तो हमें टीपी निकालना पड़ेगा, फिर एमपी निकालना पड़ेगा। क्लियर? दोनों काम करने पड़ेंगे। मनजोत, श्रुति, पता चला बच्चे? यस मैम। शुरू करें आगे? गुरप्रीत देख रहे हो बेटे? चलिए सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं। एवरेज प्रोडक्ट पता चल रहा है ना गुरप्रीत? इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। 21 आर 20, 24 2 आर 48। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी रकम है कि छोटी है, वी आर टू मल्टीप्लाई। 84 4 से मल्टीप्लाई करो, 116 5 से मल्टीप्लाई करो, 140। चेक कर लो। नाउ वी आर कमिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ये टीपी में से निकलनी है। अब एक के लिए हमें तीनों निकालनी पड़ी। 4 मार्क्स कैसे मिलने हैं जब हम ये तीनों निकालेंगे? 2 तो निकाल लिए, ठीक है, एक निकाला है, एक और निकालेंगे और एनालाइज करने का तीसरा नंबर है हमारा, 1 नंबर और मिलेगा फिर, ठीक है। 4 मार्क्स टोटल, एनालाइज करने का 1 मार्क्स है। लेट अस स्टार्ट। पहला है 20। 48 में से 20 माइनस करो जरा। 8 28। 84 में से माइनस करो 36। माइनस करें इसको भी। 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 8 3। 140 में से 16 माइनस किए 24। 24 राइट इट इज। मेरे को गलत लग रहा था कैलकुलेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट। हाउ इट इज कमिंग? 20 28 36 अप टू हियर इट इज इंक्रीजिंग। क्या पूछा गया आपसे? टेल द इंक्रीजिंग पेस। तो कहां तक है? इसको आप ऐसे सर्कल कर देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न पेस। इंक्रीजिंग रिटर्न सेल्स। लिखना क्या है? आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड यूनिट firm is operating under increasing returns to phase, increasing returns to factor, right? First to third unit. So this is the question's answer which he has asked in English. What he did, he gave you average product. एक number इसका मिलेगा, 1 mark for it, 1 mark for this part, then 1 mark of this, then English line 1 number. Total 4 marks question it is. I have explained you how marks are distributed in this question, and this is all about law of variable proportions. So any doubts and any queries you can ask me. So this is your question, which is of examination style. Only 2 columns were given. You need to find out 2 columns, then write down increasing return phase, then analyze it. Any doubts up to here? No ma'am. Is it clear? ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लेना है. You are to complete it. Okay? Yes, Gurpreet, your queries बेटा. Everything is fine. कल वाला क्वेश्चन पूरा हो गया आपका. जो कल किया था क्वेश्चन, उसमें लिखना क्या क्या है वो आपको बता देती हूँ. ये मैंने पढ़ाया तो बहुत कुछ है. आपने ला में क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन, नंबर 2 अजम्पशंस. 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे करना है आपने? देन टेबल, देन डायग्राम, देन explanation of table and diagram in
3 स्टेजेस। ये है आपका मेथड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस लिखने का, वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो ये आप पूरा कर लें और मुझे आप व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। आई विल चेक इट वेदर इट इज अप टू द मार्क और एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड, राइट मनजोत? आप लिख के भेजेंगे मेरे को श्रुति? आपने लिख के भेजना है बेटे, ओनली देन आई विल बी एबल टू चेक इट। ओके बेटे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।